बाहुबली के अदाकार राणा दिग्गोबत्ती आज हैदराबाद में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ईडी) के उहदेदारों के सामने पेश हुए। ये पेशी बैटिंग ऐप्स के प्रमोशन से मुताल्लिक जारी तहकीकात के सिलसिले में हुई। ईडी इस मामले में कई मशहूर शख्सियात से पूछगुछ कर रही है। राणा दिग्गोबत्ती पर इल्जाम है कि उन्होंने मुबैना तौर पर बैटिंग ऐप्स की तशहीर में हिस्सा लिया। तहकीकात का मकसद मनी लॉन्ड्रिंग और गैर कानूनी ऑनलाइन सरगर्मियों का पता लगाना है। ज़राए के मुताबिक ईडी ने अदाकार से मुख्तलिफ माली लेन देन से मुताल्लिक सवालात किए। इस केस में पहले ही कई अफराद और कंपनियों के बयानात रिकॉर्ड हो चुके हैं। मजीद पेशियों और कार्रवाई का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। బయట తీసుకోండి వినపడుతుందా బయట తీసుకోండి ఫోటో వినపడలేదా హలో तेलंगाना हाई कोर्ट ने वजीर आला रेवंत रेड्डी के खिलाफ दर्ज एक केस को खारिज कर दिया। ये केस अक्टूबर 2019 में जिला सूर्यापेट के ग्रीडेपली पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था। पुलिस ने इस वक्त इल्जाम आयद किया था कि रेवंत रेड्डी ने इंतखाबी ज़ाबित अखलाक की खिलाफ वर्जी की। ये मुकदमा असेंबली इंतखाबात के दौरान पेश आए एक वाक़या से मुताल्लिक था। रेवंत रेड्डी पर इंतखाबी मुहिम में ज़ाब्ते के बरक्स इक़दामात करने का इल्ज़ाम था। इस केस के इंदराज के बाद कई बार अदालती कार्रवाई मुलतवी हुई। रेवंत रेड्डी ने इस मुकदमे को खारिज करने के लिए अदालत में पिटीशन दायर की थी। उन्होंने मुअक्किफ़ इख्तियार किया कि इल्ज़ामात बेबुनियाद और सियासी मुहर्रिकात पर मबनी हैं। हाई कोर्ट ने तमाम दलाइल सुनने के बाद मुकदमा ख़त्म करने का हुक्म दिया। इस फैसले के बाद रेवंत रेड्डी को एक बड़ी कानूनी राहत मिली है। हाइड्रा कमिश्नर रंगनाथ ने कहा है कि मार्शल्स की तनख्वाहें कम नहीं की जा रहे। उन्होंने वाज़े किया कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की हिदायत है कि पुराने जीत भूत यही बरकरार रहे। रंगनाथ के मुताबिक हुकूमत का इरादा मार्शल्स की तनख्वाहें कम करने का नहीं बल्कि बढ़ाने का है। इस सिलसिले में मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर किया जा रहा है। कमिश्नर ने बताया कि दीगर रियासतों के तर्का का भी मुताला किया जा रहा है। मकसद बेहतर सहूलियात और मुराद फराहम करना है। मार्शल्स की शिकायत और मुतालिबात पर संजीदगी से गौर हो रहा है। तनख्वाहों के मामले पर जल्द हतमी फैसला मुतवक्के है। हुकूमत चाहती है कि मार्शल्स का हौसला बुलंद रहे। मुज़ाकरात का अमल जारी है और तमाम फरीक़ैन को एतमाद में लिया जा रहा है। మాస్ ఇంటర్నల్గా ఉన్న చిన్న ఇష్యూ వాళ్ళకి ఏంటంటే జియో ప్రకారం వాళ్ళకి ఒక రేట్ అంటే వాళ్ళకి శాలరీస్ ఒక దీనిలాగా ఇస్తున్నారు ఒక పర్టికులర్ స్కేల్లో. గతంలో ఎక్కువ వచ్చేది, దాన్ని ఇప్పుడు తగ్గించిన దాని విషయంలో ఆల్రెడీ ప్రభుత్వం చాలా సానుకూలంగా ఉంటే అసలు తగ్గించడానికి ఎలా ఉంది. ఎందుకంటే జిహెచ్ఎంసీ నుంచి ఈవీడిఎంలో పనిచేస్తున్న వాళ్ళు ఇప్పుడు హైడ్రాకు వచ్చినప్పుడు ఆ బదలాయించిన వాళ్ళందరికీ కూడా పాత జీతభత్యాలే మెయింటైన్ చేయాలనేది ప్రభుత్వం చాలా స్పష్టంగా, ముఖ్యమంత్రి గారే దీని మీద చాలా స్పష్టంగా చెప్పారు. అది ఉంటుందనేది. దాని విషయంలోనే మేము ఆల్రెడీ ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్లో ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ గారితో కూడా డిస్కషన్ జరిగింది అండ్ సెక్రటరీ ఎంఏడితో కూడా డిస్కషన్ అయింది. వాళ్ళ జీతాలు ఎక్కడా తగ్గట్లేదు, అంతా కూడా యాజ్ ఇట్ ఈస్గా వచ్చేటట్టే సిస్టమ్ ప్లాన్ అయింది. వాళ్ళ కొంత కమ్యూనికేషన్ గ్యాప్ తోటి వాళ్ళు తగ్గుతుందేమో అనే భావనలో ఉన్నారు. ఎక్కడా తగ్గట్లేదు. వాళ్ళు ఇంకా తగ్గటం కాదు, ఇంకా పెంచడానికి ఎలా చేయొచ్చా, డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ దాంట్లో ఎలా చేయొచ్చు అనే దాని గురించి కూడా మేము ఇప్పుడు డిస్కషన్ జరుగుతుంది. యాక్చువల్గా అవన్నీ కూడా చెప్పడంతో వాళ్ళు చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యారు. సో ఎక్కడ ఎటువంటి కమ్యూనికేషన్ జియో ఇప్పుడు 22,500 ఏదైతే ఇస్తామని జియో వచ్చిందో ఇస్తామని ఆ జియో వస్తే వాళ్ళకు కొంత భరోసా ఉంటుంది. నేను జియో అవసరం లేదు, దానికి జియో తీసుకురావడానికి కూడా ఇంకా వేరే సిస్టమ్స్ ఎలా చేయొచ్చు అనేది కూడా చూస్తున్నాం. వేరే స్టేట్స్లో ఇంకా బెటర్ ప్రాక్టీసెస్ ఉన్నాయంటే అవి కూడా స్టడీ చేయడానికి మా టీంని అవసరం అంటే కనుక బెంగళూరు, మహారాష్ట్ర అక్కడ కూడా పంపిద్దామని కూడా అనుకున్నాం. సో అవి కూడా తీసుకొని వాళ్ళది మార్షల్స్ వాళ్ళ ఇదేంటంటే అక్కడ మహారాష్ట్రలో కొంత బెటర్ సిస్టమ్ ఉందంటే మనం బెటర్ సిస్టమ్ తీసుకొని అది తీసుకొస్తే కనుక ప్రభుత్వం మనకు సానుకూలంగా ఉన్నప్పుడు హైడ్రా అనేది దాంట్లో మార్షల్స్ చాలా కష్టపడి పనిచేస్తున్నారు అనేది ఇది ఉన్నప్పుడు మనం డెఫినెట్గా సానుకూలంగా ఉన్నదాన్ని ప్రభుత్వం ఏదైతే కనుక ఒక మనకి ఇంకా బెటర్ మంచి కండిషన్స్ ఇవ్వాలనే దానికి ఉన్నప్పుడు దీనికి మనం ఆందోళన పడాల్సిన అవసరం లేదు. వాళ్ళకి జస్ట్ కొంచెం కమ్యూనికేషన్ గ్యాప్ ఉన్నట్టు అనిపించింది. సో అది కూడా అలాగా దాంట్లో 1045 మంది దాదాపు వాళ్ళు వచ్చిన వాళ్ళలో 450 మందికి బెనిఫిట్ అవుతుంది దాంట్లో యాక్చువల్గా.
వాళ్ళకి 3-4 వేలు పెరిగిందన్న, కొంతమంది తగ్గిన వాళ్ళు ఆందోళన పడ్డారు, బెనిఫిట్ అయిన వాళ్ళు హ్యాపీగా ఉన్నారు. సో బెనిఫిట్ అయిన వాళ్ళు హ్యాపీగా ఉన్న వాళ్ళు ఉండాలి, తగ్గిన వాళ్ళని కూడా మనం ఇప్పుడు వాళ్ళకు కూడా ఎలా కంఫర్ట్ చేయాలనే దానికే సెక్రటరీ గారు ఆల్రెడీ ఎంఈడి సెక్రటరీ గారు ఇలంబర్తి గారు వారు ఆల్రెడీ దాని మీద చాలా నిర్దిష్టమైన ఇది ఆదేశాలు కూడా ఇచ్చారు. వాళ్ళు ఎక్కడ తగ్గకూడదు అనేది ప్రభుత్వం యొక్క నిర్ణయం కూడా, దానికి తగ్గట్టుగా జీతాల సమస్యతో పాటు కొంతమంది అధికారులు తమ పట్ల అమర్యాదగా రూడ్గా బిహేవ్ చేస్తున్నారని కూడా నేను అది కూడా చెప్పాను. మీరు అట్లాంటి మనం జనరల్గా చేయదు, ఎవరన్నా స్పెసిఫిక్గా ఇది ఒక మంచి वजीर कुंडा सौरखा के घर के सामने दोपहर के खाने की स्कीम के मुलाजमीन ने एहतजाज किया। मुलाजमीन का कहना था कि स्कीम के ज़ेरे इल्तवा बिल्स फौरी अदा किए जाएं। उन्होंने शिकायत की कि रकम न मिलने की वजह से वो शदीद माली परेशानी का शिकार हैं। एहतजाज करने वालों ने मुतालबा किया कि दोपहर के खाने की जिम्मेदारी इक्शिया पात्रा इदारे को न दी जाए। मुलाजमीन का कहना था कि इससे उनकी रोजी रोटी मुतासिर होगी। एहतजाज के दौरान नारेबाजी की गई। मुजाहिरीन की तादाद बढ़ने पर हालात कशीदा हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुजाहिरीन को काबू में लिया। कई मुलाजमीन को हिरासत में ले लिया गया। ये वाकया मकामी सतह पर सियासी और समाजी बहस का मौजू बन गया। ఎనిమిది నెలల ఒకటి మాకు జీతాలు రాలే, మాకు బిల్లులు రాలే, మాకు రాకుండా గవర్నమెంట్ చెప్తాను మాకు రాదని మిగిలిపోయిన మా బిల్లు अक्षय पात्र को मुफ्त बस स्कीम से होने वाले भारी नुकसानात बर्दाश्त न करते हुए तारीखी गोलीगोड़ा बस स्टैंड को 400 करोड़ रुपए के लिए रहन रखने की तैयारी की जा रही है। मुलाजमीन की यूनियन सवाल उठा रही है कि जब आरटीसी मुनाफा का दावा कर रहा है तो असास क्यों रहन रखे जा रहे हैं। हुकूमत की मुफ्त बस स्कीम ने आरटीसी को शदीद माली बुहरान में धकेल दिया है। इंतजामिया को मुलाजमीन की तनख्वाहें और रिटायर्ड स्टाफ के फवाइद अदा करने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। मुफ्त बस स्कीम के लिए फंड्स जारी न होने पर हुकूमत ने उजरतों की अदायगी के लिए असासे रहन रखने का फैसला किया है। हैदराबाद का 5.8 एकड़ पर फैला तारीखी गोलीगोड़ा बस स्टैंड, इसके लिए रहन रखा जाएगा। आरटीसी 400 करोड़ रुपए हुडको से बतौर कर्ज हासिल करेगा। हुक्काम के मुताबिक आरटीसी को अपने कर्जों की अदायगी के लिए 11,000 करोड़ रुपए दरकार है। हैदराबाद में हाइड्रा सर्विसेज हुकूमत की हालिया जीओ के बाद ठप हो गई है, जिसमें मुलाजमीन की तनख्वाहों में 7,000 रुपए की कटौती की गई। तनख्वाह में कमी के खिलाफ एहतजाज करते हुए हाइड्रा मार्शल्स ने ड्यूटी का बाइकॉट कर दिया। इस बाइकॉट के नतीजे में 51 हाइड्रा गाड़ियां रुक गईं और इमरजेंसी सर्विसेज मुतासिर हुई। शहर की 150 डिवीजन्स में ऑपरेशंस बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। हाइड्रा हुक्काम ने मार्शल्स को बताया कि वजीर आला रेवंत रेड्डी के दिल्ली से वापसी के बाद बातचीत की जाएगी, इससे कबल कोई फैसला नहीं लिया जाएगा। हुक्काम ने यह भी कहा कि जो मुलाजमीन इंतजार नहीं कर सकते वो इस्तीफा दे दें। सूरत हाल ने शहरियों को शदीद मुश्किलात में मुब्तला कर दिया है। क्या हो गया, कमिश्नर साहब ने बोला है कि सीएम रेवंत रेड्डी सर दिल्ली में है, दिल्ली से आने के बाद मैं बात करके आप लोगों को क्लैरिटी दूंगा बोला इस चीज का।
लेकिन आप लोग का पेमेंट कम नहीं करूंगा बोल के सर ने बोला हमको। बट ठीक है, हम तब तक वेट किए, हमने सर के लिए वेट किए, इंतजार किए। उसके बाद में लास्ट में हमको फाइनली क्या बोल रहा है कि आपको जो जियो का हिसाब से आप लोगों को पेमेंट मिलेगा। तो ये पेमेंट से हम सहमत नहीं है। सर ने बोल रहा है कि ये जो जियो के हिसाब से आपको पेमेंट आएगी, जो आपका सैलरी बन रही है एक्स्ट्रा अमाउंट वो हम जीएचएम से डालने लगाएंगे बोल रहे हैं। ये हमारे पास में कोई प्रूफ नहीं है उस चीज का, इसलिए हम लोगों ने सभी को इन्फो करके, ऐसा नहीं कि इन्फो नहीं किए डायरेक्ट यहाँ पे आके धरना कर रहे, वैसा कुछ भी नहीं है। धरना भी नहीं हमारा, हमें हमारा ये हक चाहिए। आप देना चाहते तो रखो हमें, अदरवाइज ये हमारा रिजिग्नेशन लेटर है, इसके ऊपर साइन करके दे दो बोलना है हमने। वक्त पर न पहुंचने वाली 108 एम्बुलेंस की वजह से एक नौजवान की जान चली गई। ये वाकया जिला सिंगारेड्डी के पिलकल मंडल के बासोपुर गांव में पेश आया। 32 साला ईरा गोला वेंकटेशम ने कीले मार दवा पीकर बेहोशी की हालत इख्तियार कर ली। इसे अस्पताल पहुंचाने के लिए घर वालों और दोस्तों ने 108 एम्बुलेंस को फोन किया, ताहम एम्बुलेंस काफी देर तक नहीं पहुंची। दोस्तों ने मजबूरना इसे मोटरसाइकिल पर 40 किलोमीटर दूर अस्पताल ले जाने की कोशिश की। इस सफर के दौरान भी कहीं एम्बुलेंस नजर नहीं आई। अस्पताल पहुंचने से पहले ही वेंकटेशम की मौत वाक़ई हो गई। डॉक्टरों ने पहुंचने पर इसे मुर्दा करार दिया। दोस्तों और अहल खाना ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि अगर एम्बुलेंस वक्त पर आती तो वो जिंदा बच सकता था। आरामघर रोड से हैदराबाद एयरपोर्ट जाते हुए एक शख्स की वीडियो सामने आई है, जिसमें वो कार की सनरूफ से बाहर खड़े होकर शराब नोशी और सिगरेट नोशी कर रहा है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद शदीद तनकीद का निशाना बनी। मुताल्लिका कार TS12 एव 9233 के खिलाफ पहले से कई ट्रैफिक खिलाफ वर्जियां दर्ज हैं। उन खिलाफ वर्जियों में माजी के शराब पीकर गाड़ी चलाने के केसेस भी शामिल हैं। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक इस कार के खिलाफ फरवरी में चार्जशीट भी दाखिल की जा चुकी है। वाकया ने शहर में रोड सेफ्टी और ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद के हवाले से बहस छेड़ दी है। पुलिस इस वीडियो की बुनियाद पर मजीद कानूनी कार्रवाई की तैयारी कर रही है। अवाम ने मुतालबा किया है कि इस शख्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। यूरिया की कमी के खिलाफ किसान सड़क पर बैठकर एहतजाज पर उतर आए। ये एहतजाज करीमनगर जिला के हुजूराबाद मंडल के सोसाइटी दफ्तर के करीब हुआ। किसानों का कहना है कि उन्हें सोसाइटी से मतलूबा मिकदार में यूरिया फराहम नहीं किया जा रहा। उन्होंने करीमनगर जम्मूकंटा रोड को बंद करके धरना दिया। किसानों का इल्जाम है कि हुकूमत यूरिया की कमी के बावजूद गलत बयानी कर रही है। उनके मुताबिक हुकूमत दावा कर रही है कि यूरिया की कोई किल्लत नहीं है। एहतजाज के बाइस सड़क पर ट्रैफिक जाम हो गया। किसानों ने नारेबाजी करते हुए फौरी सप्लाई का मुतालबा किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को काबू में करने की कोशिश की। किसानों ने खबरदार किया कि अगर सप्लाई न बढ़ी तो एहतजाज मजीद सख्त किया जाएगा। మీ పేర్లు రాసుకున్నానని లిస్టు రాసిండు. మేము ఇప్పుడు లిస్టులో రాసిందని మేము వచ్చినాం. వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు ఏమంటారు అంటే ఇక్కడ కొంతమంది ఆధార్ కార్డు పెట్టారు. ఇప్పుడు ఇట్లా కాదు, మొత్తం వీణాక రాని వీణాక లైన్ పెట్టుకొని అక్కడ టోకన్ ఇద్దామని అంటే మీరు మా పేర్లు అయితే లిస్టులో రాసుకున్నారు కదా, ఆ లిస్టు అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ మిగతా వాళ్ళు లిస్ట్ ఇయ్యి. మొన్న ఇచ్చిన వాళ్ళు మళ్ళీ దాని ఆధార్ కార్డు పెట్టే డబుల్ వస్తాయి కదా, మీరే రాసుకున్నారు. మంచి ఆలోచన చేసి ఇప్పుడు మళ్ళీ వాళ్ళు ఇచ్చిన తర్వాత మిగతా ఆధార్ కార్డు మళ్ళీ రోజు ఇచ్చేయాలి. మేమేమో ఇబ్బంది పెడతాం, మీరు విడిచినట్టే మేము వస్తామని అంటున్నాం. చైర్మన్ ఏమంటుండే వినాక రాండి అంటుండట. కరెక్ట్ ముచ్చటేనా ఇది? రైతులు ఈరోజు యూరియా గురించి చాలా ఇబ్బంది పడి ఎంత అంతే అంత చాలా ఇబ్బంది పడతారు. రైతు పాలన అని ప్రజాపాలన అని రేవంత్ రెడ్డి గారు హామీలు ఇచ్చి ఈరోజు ఇక్కడ రైతులను ఎంత కోసం ఉంచుకుంటారో మీరు ఒక్కసారి చూడండి.
ఆ రైతులు యూరియా గురించి చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు. కాబట్టి ప్రభుత్వం వెంటనే యూరియా బస్తాలు ఎక్కువ కేటాయించి రైతులను ఆదుకోవాలని మా యొక్క మనవి. श्री शलम घाट रोड पर 2 आरटीसी बसों के दरमियान तसादुम हुआ। यह हादसा दूरनाल के करीब पेश आया। तसादुम में मुसाफिरों को मामूली चोटें आईं। जख्मी ड्राइवर और मुसाफिरों को दूरनाल के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया। हादसे के बाद तकरीबन 10 किलोमीटर तवील ट्रैफिक जाम लग गया। मुसाफिरों और मकामी अफराद में खौफ व हरास फैल गया। हादसे को 3 घंटे गुजरने के बावजूद हुक्काम ने कोई कार्रवाई नहीं की। ट्रैफिक की रवानी बहाल करने में शदीद ताखीर हुई। इस सूरत-ए-हाल पर गाड़ी चलाने वाले शदीद नाराज नजर आए। मकामी लोगों ने फौरी इक़दामात का मुतालबा किया। करीमनगर जिला के चुनता कंटा गर्ल्स गोरोकल स्कूल में नाकिस चावल से तालिबात को खाना दिया जा रहा था। वजीर इडलोरी लक्ष्मण ने स्कूल का अचानक मुआयना किया। मुआयने के दौरान प्रिंसिपल और तालिबात ने बताया कि पिछले 15 दिनों से खराब चावल फराहम किए जा रहे हैं। ये चावल जायके और मेयार दोनों में नाकिस हैं। वजीर को बताया गया कि ये चावल डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर DSO के जरिए फराहम किए जा रहे हैं। तालिबात ने शिकायत की कि नाकिस खाने से सेहत पर मनफी असर पड़ रहा है। वजीर ने मामले को संजीदगी से लेते हुए फौरी कार्रवाई की हिदायत दी। उन्होंने सिविल सप्लाई कमिश्नर को DSO के खिलाफ कार्रवाई करने का हुक्म दिया। वजीर ने हिदायत दी कि स्कूल को मियारी अनाज फौरन फराहम किया जाए। हुक्काम को आइंदा इस तरह की लापरवाही न करने की सख्त तंबीह दी गई। जगतियाल जिला कलेक्ट्रेट में मुनक़िदा अवामी शिकायत प्रोग्राम के दौरान पुलिस की ज़्यादती सामने आई। मिल्लापुर मंडल के मोतियुमपेट गांव से ताल्लुक़ रखने वाले माजूर राज गंगाराम अपनी घरेलू मसले के हल के लिए यहां आए थे। वो कलेक्ट्रेट में अवामी वानी प्रोग्राम में शरीक हुए। इसी दौरान कलेक्टर के आने की इत्तला पर पुलिस एहलकार हरकत में आ गए। एक पुलिस कांस्टेबल ने माजूर शख्स को जबरदस्ती घसीट कर हटाया। ये मंजर वहां मौजूद लोगों को चौंका देने वाला था। कलेक्टर सत्या प्रसाद इस वाकये को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ गए। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक पुलिस का रवैया इंतहाई गैर इंसानी था। इस वाकये पर अवाम ने बिरहमी का इजहार किया। लोगों ने मुतालबा किया कि मुताल्लिका पुलिस एहलकार के खिलाफ कार्रवाई की जाए। आरटीसी बस न रोकने पर एक खातून ने ड्राइवर को थप्पड़ मार दिया। ये वाकया आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिला में पेश आया। सरपाला मंडल के नदीम वनका गांव के करीब खातून बस का इंतजार कर रही थी। अनंतपुर से कल्याण दुर्गम जा रही बस इस स्टॉप पर रुके बगैर गुजर गई। खातून ने मोटरसाइकिल पर बस का पीछा करके इसे रोक लिया। इसके बाद ड्राइवर से तल्ख कलामी शुरू हुई। खातून ने बस न रोकने की वजह पूछते हुए ड्राइवर के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारा। वाकये से बस में सवार मुसाफिर हैरान रह गए। ड्राइवर ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है।
ఆపండి మేడం నేను ఆపనా నేను ఆపను నేను ఆపను మేడం మీరు ఆడల్లో సమస్య దూరం పోయేవాళ్ళు ఉంటారు ఎంత మాట్లాడతారు మధ్యలో వచ్చి अदाकार जूनियर एनटीआर ने तेलंगाना हुकूमत से माजरत खाहाना अंदाज में एक वीडियो जारी किया। उन्होंने वीडियो में रियासती हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। एनटीआर ने कहा कि अवार्ड 2 परी रिलीज इवेंट के इनेकाद में हुकूमत ने मुकम्मल ताउन किया। उन्होंने इस ताउन को काबिल कदर करार दिया। अदाकार ने कहा कि सरकारी महकमों की मदद के बगैर ये प्रोग्राम मुमकिन न था। इवेंट के लिए दी गई सहूलतों पर भी उन्होंने हुकूमत की तारीफ की। एनटीआर ने कहा कि अवाम और मद्दाहों का जोश देखकर वो खुश हैं। उन्होंने प्रोग्राम के दौरान पेश आई किसी भी तकलीफ पर अफसोस जाहिर किया। एनटीआर ने उम्मीद जाहिर की कि मुस्तकबिल में भी ऐसी ही हम आहंगी बरकरार रहेगी। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। అందరికీ నమస్కారం. ఇందాక ఒక ముఖ్యమైన విషయం చెప్పడం మర్చిపోయాను, నన్ను క్షమించాలి. అభిమానులతో ఈ 25 సంవత్సరాల నా జర్నీని పంచుకునే ఆనందంలో ఇది ఈ తప్పిదం జరిగింది. ముందుగా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి వారి సహాయ సహకారాలు మాకు అందించినందుకు నా కృతజ్ఞతలు, నా ధన్యవాదాలు. ముఖ్యమంత్రి శ్రీ రేవంత్ రెడ్డి గారికి, ఉప ముఖ్యమంత్రి శ్రీ మల్లు పట్టి విక్రమార్క గారికి, అలాగే హైదరాబాద్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కి, యావత్ తెలంగాణ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కి నా కృతజ్ఞతలు, శిరస్సు వంచి పాదవందనాలు చేసుకుంటున్నాను. మీకు ఈ సహాయ సహకారాలు మాకు అందించారు. అభిమానుల్ని ఎంతో బాధ్యతగా, ఎంతో అద్భుతంగా వారి ఆనందానికి మీరు కారకులయ్యారు. మీ అందరికీ కూడా अदाकार कमल हसन को जान से मारने की धमकी दी गई है। चंद दिन कबल कमल हसन ने सनातन धर्म के खिलाफ एक बयान दिया था। उनके इस बयान पर तनाज़ो खड़ा हो गया। टीवी अदाकार रवि चंद्रन ने कमल हसन के खिलाफ सख्त रद्द अमल जाहिर किया। रवि चंद्रन ने धमकी दी कि वो कमल हसन का गला काट देंगे। इस बयान के बाद सियासी और समाजी हलकों में तनकीद का सिलसिला शुरू हो गया। कमल हसन की पार्टी के रहनुमाओं ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में रवि चंद्रन के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया गया। पुलिस ने मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। हुक्काम का कहना है कि कानून के मुताबिक सख्त एक्शन लिया जाएगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से टेलीफोन पर बातचीत की। सदर ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन की हालिया सूरत-ए-हाल पर अपने ख्यालात का इजहार किया। वजीर आजम मोदी ने अमन के पुरअमन हल के लिए भारत के मुस्तकिल मौक़िफ़ की तौसीक़ की। उन्होंने कहा कि अमन की बहाली के लिए तमाम मुमकिना कोशिशें जल्द अज जल्द की जानी चाहिए। दोनों रहनुमाओं ने भारत और यूक्रेन के दो तरफ़ा ताल्लुकात में पेशरफ्त का जायजा लिया। मुज़ाकरात में बाहमी ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के तरीक़ों पर भी गौर किया गया। वज़ीर आज़म मोदी ने यूक्रेन के अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। दोनों ने मुस्तकबिल में राब्ते जारी रखने पर इत्तेफाक किया। एयर इंडिया की एक परवाज़ जिसमें कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी के सी वेणुगोपाल सफ़र कर रहे थे, बड़े हादसे से बाल बाल बच गई। ये परवाज़ तिरुवनंतपुरम से दिल्ली जा रही थी। खराब मौसम के बाइस परवाज़ के अमले ने टेक ऑफ के कुछ देर बाद ही इसे चेन्नई की तरफ मोड़ दिया। तैयारा तकरीबन 2 घंटे तक फिजा में चक्कर काटता रहा। बिलाखिर इसे चेन्नई एयरपोर्ट पर बहिफाजत उतार लिया गया। इस वाक़ये के बाद मुसाफिरों ने सुकून का सांस लिया। तैयारे में के सी वेणुगोपाल के साथ दीगर कांग्रेस अराकीन पार्लियामेंट भी मौजूद थे। परवाज़ के अमले ने हिफाजती इक़दामात के तहत फौरी फैसला किया। एयर इंडिया हुक्काम का कहना है कि मुसाफिरों की जान बचाना उनकी पहली तरजीह है। हादसे से बचने पर सब ने अमले के पेशा वराना रवैये को सराहा। हिंदुस्तान में जमहूरियत की हालत पर राहुल गांधी ने शदीद तनकीद की। उन्होंने कहा कि 300 अराकान पार्लियामेंट इलेक्शन कमीशन से मिलना चाहते थे, मगर कमीशन ने मुलाकात से इनकार कर दिया। राहुल के मुताबिक इलेक्शन कमीशन सच से डरता है। उन्होंने कहा कि ये अब सिर्फ सियासी लड़ाई नहीं बल्कि मुल्क की रूह और आइन को बचाने की जिदोजहद है। आइन के मुताबिक हर शख्स को एक वोट का हक हासिल है, लेकिन ये उसूल अब टूट चुका है। राहुल का दावा है कि नौजवानों को ये सच्चाई मालूम हो चुकी है और अब कमीशन का छुपना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि ये डेटा इलेक्शन कमीशन का है, उनका ज़ाती नहीं, और वो हल्फिया तस्दीक करने को तैयार है। राहुल ने मुतालबा किया कि कमीशन ये डेटा अपनी वेबसाइट पर डाले ताकि हकीकत सामने आ सके।
उनके मुताबिक ये मामला सिर्फ बंगलोर तक महदूद नहीं बल्कि कई हलकों में पेश आया है। राहुल ने खबरदार किया कि जिस डेटा को कमीशन छुपाने की कोशिश कर रहा है वो फटने वाला बम है। देखिए, हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी की हालत देखिए। 300 एमपीज इलेक्शन कमीशन से मिलना चाहते हैं और कहते हैं कि हम डेलीगेशन लेके आएंगे, हम आपको एक डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन कहता है नहीं, 300 एमपीज नहीं आ सकते हैं। तो यही हालत है, क्योंकि डरते हैं। 300 एमपीज आ गए और वहाँ पे सच्चाई निकल आई और हमने उनको थोड़ा जो उनके काम की सच्चाई है दिखा दी। दैट इज वाई। लेकिन आपको लगता है कि सर आपको ये जो लड़ाई है, मैं थोड़ा क्लियरली बोलना चाहता हूँ। देखिए, अब ये राजनीतिक लड़ाई से आगे निकल गई है, ठीक है। अब ये देश की जो आत्मा है, स्पिरिचुअल देश का जो आत्मा है, उसके लिए लड़ाई हो रही है। कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है। 1 मैन 1 वोट कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशन है। 1 मैन 1 वोट के बिना कॉन्स्टिट्यूशन का कोई मतलब नहीं है। और हमने क्लियरली दिखाया है कर्नाटक में कि 1 मैन 1 वोट नहीं है। मल्टीपल मैन मल्टीपल वोट, 1 मैन मल्टीपल वोट, सारा कुछ चल रहा है, ठीक है। तो ये अब लड़ाई पूरी की पूरी ऑपोजिशन लड़ रही है और हिंदुस्तान के जो युवा हैं उनको ये बात समझ आ गई है। तो अब इलेक्शन कमीशन को छुपना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। वो आपको कहता है कि आप साइन नोटिस का जवाब आप नहीं देंगे। अरे भाई, उन्हीं का डेटा है, वो अपने वेबसाइट से वही डेटा निकाल दें। मेरा डेटा थोड़ी है कि मैं साइन करूं, उनका डेटा है। आप उठाइए अपना डेटा, हमने आपको ही दिया है, आप उसको अपने वेबसाइट में लगा दीजिए, पता लग जाएगा आपको। मतलब डिस्ट्रैक्ट करने का काम है, ठीक है। और एक और बात, आप ये मत सोचिए कि सिर्फ बेंगलोर में हुआ है। ये देश में अलग अलग कंस्टिट्यूएंसीज में हुआ है और इलेक्शन कमीशन जानता है। इलेक्शन कमीशन जानता है कि वो उसका जो डेटा है वो फटेगा। जो उसको अभी वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, छुपाने की कोशिश कर रहा है, उसको हम निकाल देंगे, ठीक है। और वो फटेगा, वो जानता है। थैंक यू। शिवसेना यूबीटी के सरबराह उद्धव ठाकरे ने राहुल गांधी के बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि मेरी तवक्को थी कि अगर बीजेपी से नहीं तो कम अज कम हुकूमत का कोई वजीर या रिटायर्ड जज सामने बैठकर हकीकत जाने की कोशिश करता। ठाकरे के मुताबिक राहुल गांधी ने जो बातें कही हैं उनमें कितनी सच्चाई है ये सामने आना जरूरी है। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलात में संजीदगी और शफाफियत जरूरी है। ठाकरे ने जोर दिया कि अवाम को असल हकीकत मालूम होनी चाहिए। उन्होंने इल्जाम लगाया कि हुकूमत सवालों से बच रही है। उनके मुताबिक अवामी नुमाइंदों की बात सुनना हुकूमत की जिम्मेदारी है। ठाकरे ने कहा कि इख्तिलाफ राय रखने वालों को गद्दार कहना गलत है। उन्होंने मजीद कहा कि हम सब मुल्क के वफादार शहरी हैं। उनका मुआक्किफ था कि इस मामले में मुकालमा और वजाहत ही वाहिद हल है। नहीं, ऐसे लोग तो जब भी चुनाव आते हैं तो मिलते रहते हैं, लेकिन हमें तो पहले एक मैं बात बताना चाहता हूँ, इस तरीके से हमें जितना मंजूर नहीं है और इसलिए जो भी हमें मिले उनकी बात हमने गंभीरता से ली नहीं। लेकिन अब मुझे एक कुतूहल है कि वो लोग कहाँ गए, वो लोग हम ढूंढने की कोशिश करेंगे और अगर मिल जाए तो समझने की कोशिश करेंगे कि ये कैसा मामला है, क्या है। इसका अर्थ ये है कि अब चोरी तो हुई है और मेरी अपेक्षा यही थी, मैं दोहराता हूँ बात, कि बीजेपी की ओर से नहीं लेकिन गवर्नमेंट की ओर से कोई मंत्री या कोई रिटायर्ड जज या कोई भी आकर आमने सामने बैठकर राहुल जी ने ये सारी बातें कही है तो उसमें कितनी सच्चाई है समझ लो ना, हम देशद्रोही तो नहीं है। कर्नाटक के बंदीपुर टाइगर रिजर्व में एक सैया पर हाथी ने हमला कर दिया। ये सैया केरला रियासत से ताल्लुक रखता है। वो अपनी गाड़ी से उतरकर हाथी के सामने खड़ा हो गया। ये हरकत जंगली जानवरों के लिए इश्तियाल अंगेज साबित हुई। हाथी ने अचानक इस पर हमला कर दिया। हमले के दौरान सैया को मामूली चोटें आईं। खुशकिस्मती से वो जान बचाने में कामयाब रहा। मौके पर मौजूद दीगर सैया और अमला खौफजदा हो गए। जंगल हुक्काम ने इस अमल को इंतहाई खतरनाक और गैर जिम्मेदाराना करार दिया। सैयाहों को हिदायत दी गई कि जंगली जानवरों से फासला बरकरार रखें।
जिंदाबाद